सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। My dear students, welcome to Captain Batra classes. Today we are going to discuss a very important chapter, that is word path. Most of the students generally focus on grammar, but you know that in all competitive examination where questions are asked in English language, most of the questions are from understanding part. So you will have to keep this in your mind that word path plays a very vital role. So we should not ignore this and focus on this segment as we focus on word path. Okay, now we are going to discuss about synonym. There are many words have been written on the board. So first word is garrulous. You will have to know the meaning of the words and their uses as well, and at last you will have to tell the synonym of the word. So first word is garrulous. Garrulous means one who talks much. There are many persons who talks very much and they are called garrulous. Some other words can also be given for garrulous, like reciprocal. Reciprocal means when we maintain dialogue to someone, whatever is he saying and whatever we are receiving, that is called reciprocity. And in this way, reciprocal means one who talks much. Here in these four words, you will have to choose the synonym of the word. So the word option D is talkative. Talkative means one who talks much. In this way, talkative is the synonym of the word garrulous. There are some other words also that can be given for garrulous, like communicative. Communicative word is formed. Communicative word is formed from communicate. Communicate means express your ideas, and some persons express their ideas very much and they are called communicative. In this way, the word garrulous means talkative. Next word is quarrelsome. Quarrelsome, the word is derived from quarrel. Quarrel means jhagadna. Quarrelsome means disputative. ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह करता रहता है, उस व्यक्ति को हम quarrelsome कहते हैं. The word has been formed from quarrel. Next word is articulate. Articulate means to explain anything. Explain anything from your viewpoint. यानी किसी चीज को अपने व्यू पॉइंट से, कुल मिलाकर के किसी भी चीज को अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से अगर हम कोई चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो दैट इज आवर आर्टिकुलेशन. समटाइम्स दिस इज ऑल्सो यूज्ड टू चीट समवन. कई बार इस शब्द का प्रयोग हम दूसरों को धोखा देने के लिए भी करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंट. Confident
is the opposite of diffident. Confident means one who has confidence. जिस इंसान को स्वयं में आत्मविश्वास होता है कोई भी काम करने का, तो उसे हम कॉन्फिडेंट कहते हैं. कॉन्फिडेंट मीन्स वन हु हैज कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट. In this way, synonym of the word garrulous is talkative. Now we come on the next word. Next word is beseech. You have to tell the meaning of the word beseech. Beseech means to request very humbly. जब हम किसी से बहुत रेस्पेक्टफुली, बड़े सम्मान के साथ जब हम किसी से निवेदन करते हैं, तो दैट वर्ड इज कॉल्ड beseech. This word we can take the example of this word in Julius Caesar. In Julius Caesar, when Caesar was invited, called to Capitol, Casca is a character there, and he says to Caesar, Caesar, we beseech you. beseech you का मतलब है कि मैं तुम्हारे पैरों पर गिर करके निवेदन करता हूं. तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ beseech. beseech नॉर्मल रिक्वेस्ट से अलग है. beseech का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करना, इसे हम beseech कहते हैं. अब हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें इसका सिनोनिम है. तो द ऑप्शन इज डी, बेग. बेग का मतलब है कि रिक्वेस्ट यानी निवेदन करना. बेग का अर्थ हम कई बार ये भी लेते हैं कि बेग मीन्स भीख मांगना. लेकिन जब हम किसी से भीख मांगते हैं, कोई चीज मांगते हैं, तो उसके लिए हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं. इस तरह से beseech का जो सिनोनिम है दैट इज बेग. बेग मीन्स निवेदन करना. नेक्स्ट वर्ड इज crave. crave मीन्स लॉन्ग. लॉन्ग का मतलब है कि जब हम किसी चीज के लिए इच्छा करते हैं, जब हम किसी चीज के लिए इच्छा करते हैं, तो उसे हम लॉन्ग बोलते हैं. लॉन्गिंग का मतलब है डिजायर. लॉन्गिंग मीन्स होता है इच्छा, और क्रेव का मतलब है कि लॉन्ग यानी इच्छा करना, डिजायर करना. नेक्स्ट वर्ड इज प्रेज. प्रेज, दिस इज अ नॉर्मल वर्ड एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दैट प्रेज मीन्स इन हिंदी, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना. बट प्रेज के कई सारे सिनोनिम हैं. मैं स्टार्ट करता हूं. जैसे कमेंड, लॉर्ड, LAUD, एक्सटॉल, यूलोजाइज, applaud, compliment, COMPLIMENT, compliment. Commend, laud, extol, eulogize, applaud, compliment. All these words bear the same meaning. और अगर हमें इन वर्ड से नाउन बनाना हो, तो प्रेज का नाउन तो प्रेज ही होगा, लेकिन कमेंड से हम कमेंडेशन बना सकते हैं. लॉर्ड का भी लॉर्ड ही होगा. एक्सटॉल, यूलोजाइज, अपलॉड, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे वर्ड्स सेम मीनिंग रखते हैं. इन सब का अर्थ है प्रशंसा करना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस. नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेस. ब्लेस का मतलब जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना. तो इस तरीके से beseech जो वर्ड है, इसका सिनोनिम हो गया ऑप्शन डी. नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज repugnance.
और आपको यह बताना है कि इसमें कौन इसका सिनोनिम है। तो रिपग्नेंस मीन्स हेट्रेड। रिपग्नेंस का अर्थ है घृणा यानी नफरत। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी यानी एवर्जन। एवर्जन का अर्थ भी है नफरत यानी घृणा। एवर्जन वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड एवर्स, मीन्स टू से एवर्स इज द verb form of aversion. Aversion and repugnance, one more word has been written there, that is hatred. तो in this way hatred, repugnance और aversion इन सब का मतलब है नफरत. Some other words can also be written like loathe, L-O-A-T-H-E. Loathe means नफरत करना भी है, नफरत भी है, means to say ये वर्ब भी है और ये सिनोनिम भी है। तो लोथ मींस नफरत और नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड हैज बीन रिटन, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये वर्ड बनता है एब्जॉर्ब से। एब्जॉर्ब का मतलब है कि शोषण करना, किसी चीज को सोखना। तो एब्जॉर्प्शन ये एब्जॉर्ब का नाउन है और एब्जॉर्प्शन ये इसका मतलब हो गया कि सोखना। ये इसकी हिंदी मीनिंग हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसके रूट में जाने की कोशिश करें तो रिप्रेजेंटेशन वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब है किसी चीज को प्रस्तुत करना और रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुतिकरण। जब हम किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं, तो इसका जो नाउन फॉर्म है दैट इज रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड है फ्रैगमेंटेशन। दिस हैज आल्सो बीन formed from the word fragment, as it is clear the word is fragment. fragment का मतलब है टुकड़ा और फ्रैगमेंटेशन का मतलब है कि अगर कोई चीज टुकड़ों में डिवाइडेड है तो उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। यानी फ्रैगमेंटेशन का मतलब है किसी चीज का खंडन करना या किसी चीज के टुकड़े करना। ये फ्रैगमेंटेशन की मीनिंग होगी। इस तरह से जो हमारा वर्ड था रिपग्नेंस, तो रिपग्नेंस का जो सिनोनिम है वो है एवर्जन और एवर्जन मीन्स नफरत। नेक्स्ट टर्म इज इमेंसिपेशन। द वर्ड इमेंसिपेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब है किसी चीज को मुक्त करना, किसी चीज को स्वतंत्र करना, और इमेंसिपेट से हम इमेंसिपेशन बनाते हैं। तो इमेंसिपेशन का मतलब है मुक्ति, इमेंसिपेशन का मतलब है मोक्ष। दिस वर्ड इज यूजुअली यूज्ड इन स्पिरिचुअल डिलीवरेज। इमेंसिपेट मीन्स मुक्त करना और इमेंसिपेशन का मतलब है कि मुक्ति यानी मोक्ष। तो we have to see कि इसमें से इसका सिनोनिम क्या होगा। इमेंसिपेशन का जो सिनोनिम है दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता, फ्रीडम का मतलब है कि लिबर्टी। बट अगर हम फ्रीडम का सिनोनिम लिबर्टी लिखें तो फ्रीडम में और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है। फ्रीडम अगर हम इसके हिंदी में ही चले तो फ्रीडम को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और लिबर्टी को हिंदी में कहते हैं स्वच्छंदता। इन दोनों शब्दों के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीनिंग में डिफरेंस है। लाइक फ्रीडम इज ऑलवेज इन लिमिट। जैसे हमारे संविधान में हमें कुछ स्वतंत्रताएं दी है, हमें फ्रीडम दी, लेकिन वो फ्रीडम हमेशा किसी लिमिट के तहत है। सपोज दैट
our constitution have given us freedom to speech। हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता, बोलने की उसकी जो स्वतंत्रता है उसका हनन होता हो। हमें अपना धर्म मानने का, उसको प्रचार करने का, उसमें विश्वास करने का अधिकार है, लेकिन हम दूसरे के धार्मिक अधिकारों में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, ये हमेशा लिमिट में होती है। बट लिबर्टी का मतलब ये है कि जैसे हमने किसी को कैप्टिव बना रखा है, हमने किसी को प्रिजनर बना रखा है, और जब उसे हम स्वतंत्र कर देते हैं तो नाउ ही इज इन हिज फ्री विल, अब वो अपनी पूरी स्वतंत्रता में है। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर कोई बाध्यता, कोई रोक नहीं है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सपोज दैट अगर हम सोसाइटी में हैं तो सोसाइटी में रहने, चलने फिरने की हमें आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन कुछ सीमाओं के तहत अगर हम जंगल में हैं तो हम चाहे जैसे रहें, कोई हमारे को ये बोलने नहीं आता कि आप किस प्रकार से रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो लिबर्टी का मतलब है स्वच्छंदता, ये लिमिटलेस होती है, और फ्रीडम जो होती है ये हमेशा और हमेशा किसी न किसी सीमा के तहत ही स्वतंत्रता दी जाती है। तो इन दिस वे द वर्ड इज फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड, द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है हिंदी में स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब यह है कि अगर हम अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेने के लिए, अपना काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, हम किसी की इच्छा के अधीन काम नहीं करते, हम फ्री होकर के काम करते हैं, तो उसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं। जैसे कश्मीर में प्रायः ऑटोनॉमी की बात की जाती है, क्योंकि कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू है, और इससे भी आगे जाकर के कश्मीर के लोग ऑटोनॉमी की बातें करते हैं कि उनको इंडिया से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। तो दैट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि दूसरे के अधीन काम ना करना, दैट इज ऑटोनॉमी। अपनी कंडीशन, अपनी शर्तों के अनुसार काम करना, दैट इज ऑटोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड इज सॉवरेंटी। सॉवरेंटी इन हिंदी मीन्स संप्रभुता। संप्रभुता ये एक राजनीतिक शब्दावली है। जैसे सरकार के 4 अंग होते हैं, जिनमें पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है भूखंड, तीसरा है सरकार, और चौथा है सॉवरेंटी। ये कहा जाता है कि भारत 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया वॉज नॉट अ कंट्री। भारत वास्तव में एक देश था ही नहीं, क्योंकि भारत की जो सॉवरेंटी थी, उसकी जो संप्रभुता थी, वो इंग्लैंड के क्राउन में निहित थी। भारत अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था। तो उसके पास भूभाग यानी लैंड था, उसके पास पॉपुलेशन थी, उसके पास अपनी गवर्नमेंट यानी सरकार थी, लेकिन ये सब होने के बावजूद उसके पास संप्रभुता नहीं थी। तो संप्रभुता का मतलब यह है कि उस लिमिट में, उस एरिया में डिसीजन लेने के लिए वो बॉडी फ्री। जैसे भारत अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर कोई भी निर्णय ले सकता है, कोई भी देश उसे बाध्य नहीं कर सकता, तो इसको हम संप्रभुता कहते हैं। दिस इज द सॉवरेंटी। नेक्स्ट वर्ड इज सर्विट्यूड। सर्विट्यूड, द वर्ड हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सर्व, लेकिन सर्विट्यूड का मतलब है कि जब हम किसी के दास होकर के, पहले के समय में दास प्रथा होती थी,
जिसमें दास के ऊपर मालिक का संपूर्ण अधिकार होता था उसके तन और बन पर, लेकिन अब ये व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। लेकिन जो वर्ड सर्विट्यूड है, इसकी मीनिंग है कि अगर हम किसी व्यक्ति के तन और मन पर अपना अधिकार रखते हो और वो अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर सकता हो, तो दैट इज कॉल्ड सर्विट्यूड। दिस वे सर्विट्यूड का मतलब है दास। तो आज हम लोगों ने ये कुछ सिनोनिम के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस